हरि हरि बोलिते नयन बहे मीरा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते करुणा हरि बे संसार वासना मोरा कब तुच्छ दे कबे निताय नदे करुणा हरि बे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ दे ईशया हरिया कबे शुद्ध भगवाना कबे हमारे गो श्री वृंदावना ईशया छाड़िया कबे शुद्ध अभिमाना कबे हमारे श्री वृंदावना रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम जाबो से युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम से युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोरा आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे प्रभु आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोरा आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोर आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास हरि हरि गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन मीरा Hare Krishna, Krishna
हरिनाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 7, The Killing of Demon Trunavath, text number first and second, 10.7.1 and 2. Suffer, 10.7.1. एन अवतारेण भगवान हरिर ईश्वर करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानी च नः प्रभो एन अवतारेण भगवान हरिर
ईश्वर भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्णरम्यानि करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानी च नः प्रभो मनोज्ञानी च नः प्रभो श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच येन येन अवतारेण येन येन अवतारेण भगवान् हरिरीश्वरः हरिरीश्वर करोति कर्णरम्यानि करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानी च नः प्रभो मनोज्ञानी च नः प्रभो येन येन अवतारेण येन अवतारेण भगवान् हरिरीश्वर भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्णरम्यानि करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभो मनोज्ञानी च नः प्रभो येन येन अवतारेण येन अवतारेण भगवान् हरिरीश्वर भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्णरम्यानि करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभो मनोज्ञानी च नः प्रभो Translation. King Parikshit said, "My Lord Sukdeva Goswami, all the various activities exhibited by the incarnations of the Supreme Personality of Godhead are certainly pleasing to the ear and to the mind. Simply by one's hearing of these activities, the dirty things in one's mind immediately vanish. Generally, we are reluctant to hear about the activities of the Lord, but Krishna's childhood activities are so attractive that they are automatically pleasing to the mind and ear. Thus, one's attachment for hearing about material things, which is the root cause of material existence, vanishes, and one gradually develops devotional service to the Supreme Lord, attachment for Him, and friendship with devotees who give us the contribution of Krishna consciousness. If you think it fit, kindly speak about those activities of the Lord." पद पढ़िए दिशा कैमरा खोलो As stated in the Prema Vivar, Krishna bahirmukh hai bhog vancha kare, nikatastya maya tare, japati yadhare. Our material existence is maya or illusion, in which we desire different varieties of material enjoyment, and therefore change to different varieties of bodies. Brahmayam sarva bhutani yantrarudhani mayaya. Asan api kleshada ashdeha. As long as we have these temporary bodies, they give us many varieties of tribulation. Adha, Adhyatmika, Adhibhautika, and Adhidaivika. This is the root cause of all suffering. But this root cause of suffering can be removed by revival of our Krishna consciousness. All the Vedic literatures presented by Vyasadeva and other great sages are therefore intended to review our Krishna consciousness, which begins to review with Shravanam Kirtanam, Shruvantam Savakataha Krishna, Srimad Bhagavatam, and other Vedic literature exists simply to give us a chance to hear about Krishna. Krishna has different avatars or incarnations, all of which are wonderful and which arouse one's inquisitiveness, but generally such avatars as Matsya, Kurma, and Varaha are not as attractive as Krishna. First of all, however, we have no attraction for hearing about Krishna, and this is the root cause of our suffering. Go on. But Parikshit Maharaj specifically mentions that the wonderful activities of baby Krishna, which amaze Mother Yashoda and the other inhabitants of Braja, are especially attractive. From the very beginning of his childhood, Krishna killed Putna, Trunavarta, Shakatasura, and showed the entire universe within his mouth. Thus, the pastimes of Krishna, once after another, kept Mother Yashoda and all the inhabitants of Braja in great astonishment. The process of revive one's Krishna consciousness is Adau Shraddha Tata Sadhu Sangha. Bhakti is Samrit Sindhu 4.15. The pastimes of Krishna can be properly received from devotees
If one has developed a little bit of Krishna consciousness by hearing from Vaishnavas about the activities of Krishna, one becomes attached to Vaishnavas who are interested only in the Krishna consciousness. Therefore, Parikshit Maharaj recommend that one hears about Krishna childhood activities, which are more attractive than the activities of other incarnations such as Matsya, Kurma, and Varaha. Wanting to hear more and more from Sukdev Goswami, Maharaj Parikshit requested him to continue describing Krishna's childhood activities, which are especially easy to hear and which create more and more inquisitiveness. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर द्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जय कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. So thank you, all of you. So, seeing your enthusiasm for morning program, kirtan, dancing, and singing bhajan is very good. So I'm very happy to see all of you that we are doing devotional service very enthusiastically. Is there anyone absent here? Okay. Other than Girish? ईश्वर प्रभु Where is he? Okay. Anyone else? Sagar. Amal is at home. Yadunandan who? In Tampa. Okay. And how many ladies serving in kitchen? Only Abhishek. Siddhant is there. Okay. So, no problem. So, we are very fortunate that tomorrow there will be a very big festival, a very special festival. Which festival? Gaur Purnima. Gauranga Mahaprabhu ki Jai! So, this is very special for us. Even more than Janmashtami, this festival is very special for us. Because it is the compassionate heart of Chaitanya Mahaprabhu by which we will get the Krishna consciousness. And just to prepare for that tomorrow's festival, so we will discuss some Krishna, Sri Gauranga Katha. But before that, why we have to hear regular Srimad Bhagavatam or pastime of the Lord is mentioned in this verse, like this verse from 10th chapter, 10th canto, 7th chapter, and first and second verse. So all of you heard the translation of this verse. So without seeing, I want to know what do you understand from the translation. What was there in the translation? And Amanru, we have to rotate the camera for those asking. Yes, Sujal bro. In the purport, Srila Prabhupada told that by hearing Krishna's childhood pastimes, our material desires get vanishes.
Oh, very good. Something else. Yes, Sarthak bro. In purport, they said like there is various Matsya avatar, Kurma avatar, Mm. but the Krishna's avatar is very special. Mm. That we should hear about the past childhood activities of the Krishna Bhagavan, Mhm. and it will vanishes all the material desires. It will vanishes all material. Very good hearing. Very nice. Someone else. Yes, Tushar. Prabhupada also mentioned in his purport that our real cause of suffering, that is Adidaivic, Adibhautik, Mhm. and Adhyatmic, these are root cause of all suffering. Mm. So we should engage ourselves in Krishna service, that is Prabhupada mentioned in his purport. Okay. Good. Rishikesh too. Someone, Ashwin. Main cause of suffering, we don't have any rush to hear about Krishna. This is very good point. That we don't have any Shraddha. We don't have any attraction for hearing about Krishna Katha. And this is the root cause of all our suffering. Anyone else? Some other points? There are special points in the translation. Specifically the second words which we don't study. Yash Shunvanto Apaiti Arati Vitrishna Sattvam Cha Shuddham Achirena Pumsa Bhaktir Haro Tat Purushet Cha Sakhyam Tateva Haram Madhavanyase Chetha. So here there are 5 points which indicate the benefits of hearing Krishna Katha, the benefits of hearing Gauranga Katha, the benefits of hearing the Bhagavatam. The first thing is Yash Shrunvato Apaiti Arati. The material, what was the point? That one's attachment of hearing about the material thing, which is the root cause of existence, vanishes. अगर हमको दुनिया के बारे में सुनने की जो इच्छा रहती है, भौतिक चीज़ों के बारे में, कि अभी स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, और ये सब चीज़ें भौतिक इच्छा है, भौतिक चीज़ों के बारे में सुनना है ना, वो सब जो है जहाँ के भगवान के प्रति, जहाँ भगवान के बारे में सुनने में हमको अभी इच्छा नहीं, अपैति आरित, इस शब्द का अर्थ है कि we have the distaste for hearing कृष्ण कथा. वह distaste जो है, अरति जो है, वो चली जाती है, मतलब रति आ जाती है कृष्ण के बारे में सुनने. We get the taste to hearing the कृष्ण कथा. अपैति आरती. उसके बाद है वितृष्णा. तृष्णा means in Sanskrit. Krishna means प्यास, तहा, और हैंगर. इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थर्स्ट जो है. तो we all have the desire, material desire. We have lot of material desire. काम, क्रोध, लोभ, और बहुत कुछ हमको पाना है, बहुत कुछ करके दिखाना है. ये जो मटेरियल हैंकरिंग जो है, मटेरियल थर्स्ट जो है, वो भी शमन हो जाती है कृष्ण कथा सुनने से. सत्वम च शुद्धम. सत्वम च शुद्धम मतलब यहाँ पे वो जो व्यक्ति है तुरंत सत्व में स्थित हो जाता है. थर्ड चीज कि सत्व गुण में स्थित हो जाता है. भक्तिर हरो, भगवान हरि के प्रति जो भक्ति है उसके हृदय में स्थापित हो जाती है. तुरंत भक्तिमय प्रोसेस में उसके प्रगति चालू होता है. और पांचवा चीज है तत्पुरुषम च सख्यम. भगवान के जो भक्त है उनके साथ मित्रता प्रस्थापित हो जाती है. One can become easily the friend of all devotees just by hearing the Krishna Katha. So who can repeat the 5 things? There are the 5 effects of hearing Krishna Katha. Yes, Shro. You are hiding behind the Siddhanta Prabhu. So, what are the 5 effects of hearing Krishna Katha? Yes. Our material desire vanishes. We like to do a devotional service. Okay. And devotional service. Okay. What remains? Pavan Prabhu. Krishna Katha can stop our hankering. Material hankering. With Krishna. Yes, Aman Prabhu. हमारे सभी इच्छाओं को खत्म, मतलब जो मटेरियल चीज़ें रहती वही रिपीट कर दिया आपने. हाँ,
Sujata. The person enters in Satvaguna. Very good. Vande means The person make friends with devotees of Lord. very good. Birth, death cycle, we get out of that. उन्हें बोला था मैंने, इसमें था कि अपैथी अरति, भगवान के कथा सुनने में जो अरति है, जो डिस्टेस्ट है, वो चली जाती है। तो 5 शब्द आप लोग याद रखिए, अपैथी अरति, वितृष्णा, सत्यम च शुद्धे, उसके बाद है भक्तिर हरो, तत्पुरुषम च सख्यम। ये 5 चीजें हो जाती है। तदैव हरम वद मन्ने से चतम। तो इसलिए परीक्षित महाराज बोलते हैं कि अगर आपको सही लग रहा है तो आप क्या कीजिए, ये जो कथा है मुझे सुने। तदैव हरम, यहाँ पे हरम मतलब गार्डन है, और किस चीज का गार्डन? भगवान की कथा का गार्डन। तो कोई अगर भक्त भगवान की कथा का माला जो है वो अपने गले में पहन लेता है, या मतलब कथा सुनना चालू कर देता है, तो उसके जीवन में ये 5 परिणाम हो जाते हैं, और यही भक्ति का गोल है। और इसलिए हम लोग जब उत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाने के बाद हम लोग मेन उत्सव के 2 पार्ट रहते हैं, एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। तो एक्सटर्नल में क्या आएगा? एक फेस्टिवल में उत्सव शब्द का मतलब क्या है? उत्सव मतलब पता है किसी को? जैसे भी कल गौरी पूर्णिमा उत्सव है, उत्साह होता है उसमें, खुशी। उत्साह होता है। उत्सव मतलब उच्च शब्द से आता है कि ऊपर उठना। जैसे हम लोग दीपावली में कुछ जलाते हैं तो ऊपर हवा में जाता है ना, तो फेस्टिवल में मतलब ऊपर उठ जाता है कोई भी चीज है। तो जहाँ पे हमारा चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस ऊपर उठता है, वो है उत्सव। जहाँ पे हमको कृष्ण कथा रुचि आने में रुचि आ जाती है, वो उत्सव। तो फेस्टिवल के एक्सटर्नल पार्ट क्या है और इंटरनल पार्ट क्या है? तो चेतना का ऊपर उठाना वो है मेन पर्पस, वो इंटरनल में आएगा। पर कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है उत्सव में? एक है एक्सटर्नल चीज और दूसरा है इंटरनल चीज। कौन बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए। इंटरनल में भाव, एक्सटर्नल एक्टिविटीज मुझे चाहिए, एक्टिविटीज चाहिए। सेवा, एक्सटर्नल हाथ ऊपर कीजिए। उत्साह से कीर्तन डांस करेंगे। कीर्तन में डांसिंग करना एक एक्सटर्नल हुआ, इंटरनल हुआ। एक्स्ट्रा ओके। हरि कथा श्रवण करना, श्रवण करना, प्रसाद, प्रसाद खाना, दर्शन, दर्शन लेना, और बस 4 ही चीजें उत्सव में, और कुछ नहीं रहता। भक्तों के साथ संग करना, साधु संग, ओके। वरिष्ठ भक्त। भक्तों की सेवा, प्रचार करना, प्रचार करना। उत्सव में ज्यादा प्रचार नहीं किया, अगर कोई मिल गया प्रभु जी को, समझो मिल जाता है तो प्रचार चालू कर देते प्रभु जी। कोई नई ड्यूटी मिल गई, और इतने ही एक्टिविटीज रहते हैं उत्सव में। डेकोरेशन है, श्रृंगार है, कुकिंग है, इतने सारे क्लीनिंग है, इतने सारे फेस्टिवल के पार्ट आ जाते हैं इसमें। प्रॉपर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आ जाता है, ये सब सर्व फेस्टिवल के पार्ट है। सर्विंग है, और फिर इंटरनल में क्या आएगा? जप करना, ओके, जहाँ पे हम लोग अपने कॉन्शियसनेस को अपडेट कर देते हैं। कमिटमेंट, खुशी खुशी रहना। हैप्पीनेस जो है, कथा सुनना भी है, रीडिंग, रीडिंग करना, संकल्प भागवत, करना, कुछ संकल्प करना। और तो एक बहुत अच्छा क्लास दिया था प्रभु जी ने इसमें, मतलब राधेश्याम प्रभु का भी मैंने सुना, गौरांग प्रभु का भी क्लास इसी श्लोक के ऊपर। तो प्रभु जी फर्स्ट इन वीटी के लिए एक क्लास दिया था। वीटी का बैच चालू हुआ था 2008 में शायद। तो उसमें प्रभु जी इस श्लोक के ऊपर बोल रहे थे कि इस्कॉन में हमारे ट्रेनिंग का जो पर्पज है, या उत्सव का जो पर्पज है, फेस्टिवल का जो पर्पज रहता है, वो है शब्द ध्वनि के साथ। क्योंकि श्रवण एक प्रोसेस है जहाँ पे हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है, टू कनेक्ट विद साउंड वाइब्रेशन। दिस इज द पर्पज ऑफ फेस्टिवल। फिर कथा के द्वारा है, कीर्तन के द्वारा है, ग्रंथ अध्ययन के द्वारा है,
या फिर डांसिंग है, कि वहाँ पे अगर खाली डांस कर रहे हैं पर हरि नाम नहीं ले रहे तो मतलब नहीं। तो एनी हाउ टू कनेक्ट विथ साउंड वाइब्रेशन इज द पर्पज ऑफ ऑल फेस्टिवल, it is the purpose of all training, even though it is the purpose of staying in the base only. अगर हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, मतलब प्रसाद खा रहे हैं और डांसिंग भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, तभी किचन में भक्त सेवा कर रहे हैं, पर साउंड वाइब्रेशन के साथ, हरि नाम के साथ, हरि कथा के साथ कनेक्शन हुआ ही नहीं, तो फिर श्रम है वही केवल। इस्कॉन क्या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, पूरा एक सिस्टम, ट्रेनिंग, और आप देखेंगे कि पूरा एक, जैसे इंडस्ट्रीज आगे बढ़ता है ना, कोई मल्टीनेशनल कंपनी तो वो आगे बढ़ेगा, उसी तरह इस्कॉन आगे बढ़ता है। तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट रहेगा, वहाँ पे भी लोग साथ आके मीटिंग्स हो जाएगा, वहाँ पे भी कथा होगा, पर कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में होगा। वहाँ पे भी प्रसाद रहेगा, पार्टी रहेगा, प्रसाद मतलब पार्टी, लोग खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, एंजॉयमेंट पार्ट भी रहेगा, ट्रेनिंग पार्ट भी रहेगा, और नए लोगों को कनेक्ट करना है। अपना प्रोडक्ट है, जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोडक्ट क्या है? भक्ति है, हरि नाम है, हरि कथा है, और उसको प्रचार करने के लिए हम लोग प्रीचिंग प्रोग्राम करते हैं, लोगों को लेके आ जाते हैं। तो कंपनी में भी एक तरफ से वही हो जाता है, वही स्ट्रक्चर से वो कंपनी भी चलता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, पर वहाँ पे उनका इंटरनल और एक्सटर्नल एक ही है, फर्क कुछ नहीं। हमारे पास इंटरनल चीज है, क्योंकि अगर इतना सब होने के बाद अगर हम लोग हमारे माला के द्वारा, कथा के द्वारा अगर भगवान के साथ संबंध नहीं कर पा रहे शब्द ध्वनि के द्वारा, तो फिर इसको एक मल्टीनेशनल कंपनी के जैसा हो जाएगा। लोग आएंगे, फेस्टिवल करेंगे, जाएंगे, पर हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। अगर फेस्टिवल के बाद परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फेस्टिवल यूज्ड टू हो गया हमारे लिए, या यात्रा के बाद परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन क्या होना चाहिए? भक्ति में प्रगति। हाँ, वो इंटरनल हो गया। उसका एक्सटर्नल में क्या लिखेगा परिवर्तन में? बराबर से सेवा करना। एक आप बोलिए। सेवा क्या? समझो अगर कोई पहले सेवा नहीं करता था, हाँ, तो सेवा भाव बढ़ना चाहिए फेस्टिवल के बाद। हाँ, साधना बढ़ना चाहिए। साधना बढ़ाना मतलब साधना में क्या क्या आ जाए? क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे, और हाँ, तो अगर फेस्टिवल के बाद कोई 4 माला जप कर रहा है तो कम से कम पहला लक्षण होता है कि उसकी इच्छा होगी मुझे 8 माला जप करना चाहिए। नहीं तो बस बहुत सारा प्रसाद खाया, गुलाब जामुन खाए, स्वीट राइस खाया और पनीर का सब्जी खाया, डांसिंग भी किया, पर फेस्टिवल के बाद कुछ इच्छा ही नहीं हुई जप बढ़ाने की, तो फिर बस फेस्टिवल में हमने कुछ पाया ही नहीं। और क्या होगा फेस्टिवल में? सेवा वो बढ़ेगा, साधना, हरि नाम बढ़ेगा, और श्रवण करने की इच्छा होगी। जैसा भी हमने भजन गाया, गौरंग बोलते हवे फुलक शरीर, हरि हरि बोलते नयन बबिनीर। ये तो बहुत उच्च स्तर है। जैसे ही मैं गौरंग का नाम लूंगा तो क्या होगा? शरीर पे कंपन हो जाएगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा, आंखों से आंसू आने लगेंगे। तो किसको आए थे? नित्यानंदशी। कौन कौन भक्त है जिनको नित्यानंदशी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद आंखों में आंसू आए थे, भगवान के सामने प्रार्थना करने के? कभी कभी इमोशनल सेंटिमेंट्स आ भी जाते हैं, तो उसी क्षण के लिए रहता है, हम बाद में आके चालू हो जाता है। तो वे है फेस्टिवल का परिणाम। अगर ये नहीं हो रहा है तो कम से कम इसके लिए आंसू आना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। वो भगवान इतनी बार गौरपूर्ण फेस्टिवल किया है, इतनी बार नित्यानंद ऋषि किया है, क्यों नहीं ये सब हो रहा है? तो इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, इसके लिए रोना चाहिए। तो अपैथी आरती, कथा सुनने के बाद, फेस्टिवल के बाद भगवान के बारे में सुनने में रुचि होना चाहिए। जैसे कल का टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए बहुत मैंने पढ़ा था, तो स्वाभाविक
ये जो गौरांग बोले थे अभी मुझे वो यमुना माता जी का बुक था, तो मैंने जस्ट पढ़ा था कि शायद मैं इसके ऊपर कुछ बोलूँगा, पर समय नहीं था। पर अचानक से सुबह उठा ना, उस भजन का याद से मुझे मेरा नींद खुल गया। तो बोला ये सही में ऐसी भावना में, अगर ऐसी अपना ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कथा में, फेस्टिवल में आप लोग एब्जॉर्ब नहीं हुए, कथा में, श्रवण में, क्योंकि एक लेक्चर सुनना और लेक्चर देना दोनों अलग चीज़ है। तो भले प्रभाव, इन्फ्लुएंस देने की भावना रहती है कभी कभी, पर कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आप सोते खाते उठते भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो शरीर पे पुलक आना तो बाद में होगा, हमारा स्तर वो नहीं, पर कम से कम वो गोल हमारा है। और ये नहीं बोल सकते कि जब होगा देखा जाएगा, अभी तो बहुत समय हमारे पास बहुत कम है। तो अपैती आरती, भगवान की कथा सुनने में, हरिनाम सुनने में, उसको बढ़ाने में रुचि आए। अभी रुचि है नहीं हमारे में, पर उत्सव के बाद, फेस्टिवल के बाद एक तो चीज होना चाहिए। उसके बाद है वितृष्णा। हम सबको तृष्णा है, कुछ तो पाना है, जो है पैशन है, रजोगुण है, कुछ तो करके दिखाना है। जैसे बोलते ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा कुछ तो हम सबको दुनिया के सामने करके दिखाना है, हमारे घर वालों के सामने, फ्रेंड्स के सामने, क्योंकि हमको अप्रिशिएशन मिलेगा। लोग कुछ पूछेंगे, अरे वाह कितना अच्छा इंजीनियरिंग किया, उसको इतना बड़ा जॉब लग गया, साल का कितना 50 लाख कमाता है, 60 लाख कमाते हैं। अभी तो नहीं होगा, सॉफ्टवेयर में भी नहीं होगा अभी तो, ड्यूटीज बोली कि रिसेशन आ। तो वितृष्णा जो है, तो इतना सारा मटेरियल हैंग करेंगे हमारे हृदय में, कुछ तो करके दिखा, ये मिट जाती है। ये कथा के बाद होना चाहिए। अगर कथा के बाद लगता है यार टाइम वेस्ट हो गया, इससे अच्छा मैं पढ़ाई करता, कुछ एग्जाम का प्रिपेयर करता, तो मतलब वितृष्णा नहीं हो रहा। तो मटेरियल एंकरिंग कम होना चाहिए। उसके बाद क्या था, सत्वम च शुद्धे, व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो जाता है। और सत्वगुण स्वाभाविक, उसको ना, अगर जो कथा सुनते हैं ना, आप लोगों में से कौन थे भक्ति में आने से पहले? जैसे ऋषिकेश आपको कब होगा, कितने साल, 2 साल हो गए या 1 साल हो? 1 साल हुआ। तो 1.5 साल पहले आप आपके रूम में कितने बजे उठते थे? 9 बजे उठते थे। मतलब प्रभु जी सूर्यवंशी थे। कभी उन्होंने सूर्य देखा, सूर्य आने के बाद प्रभु जी जगते थे, सूर्य। तो कोई भी ऐसा था नहीं जो सूर्य अर्ली मॉर्निंग 4:30 भी नहीं, 4 बजे उठता था। पर अभी देखो प्रगति है, ये होना चाहिए भक्ति में आने का। हमको चंद्रवंशी बनना, गौर चंद्र है, कृष्ण चंद्र है ना, तो भगवान चंद्रवंश में आए, तो उन्हीं का अनुकरण करके हमको होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो व्यक्ति स्वाभाविक सत्वगुण का लाइफस्टाइल जीना उसको अच्छा लगता है। अगर ये नहीं हो रहा है ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, या तो फिर प्रोसेस ठीक से हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। ऐसा होगा ही नहीं जो श्रवण कर रहा है, हरिनाम ले रहा है, वैष्णव की सेवा कर रहा है, पर उसके जीवन में ये परिवर्तन नहीं हो, या तो मतलब उसका कुछ तो अल्टरनेटिव मोटिव है, या तो फर्स्ट फैसिलिटी से वो अटैच है, या फिर भौतिक चीज के प्रति अटैचमेंट है, या फिर दिखावा है। मतलब मस्त जोर से कीर्तन कर रहा है, गा रहा है, पर इच्छा क्या है, भगवान को संतुष्ट करना, ये नहीं। इच्छा है बाकी लोगों को प्रभाव डालना, लोग अप्रिशिएशन करेंगे, गुणगान गानेंगे, गुणगान करेंगे, यही इच्छा है। तो ये अल्टरनेटिव मोटिव, फिर अहेतु की भक्ति है नहीं, या फिर फैसिलिटी से अटैच है, ये नहीं होना चाहिए। तो स्वाभाविक सत्वगुण हमारे जीवन में आना चाहिए, नहीं तो फिर श्रम एवं केवल, इतना सब सुबह जल्दी उठ के कुछ मतलब नहीं। उसके बाद क्या था, भक्ति हरो, हरि के प्रति जो भक्ति है। अभी तो विधि भक्ति हम लोग कर रहे हैं, पर हरो भक्तो मतलब यहाँ पे हमको स्वाभाविक हो जाती है भक्ति हमारी। हमको अलार्म लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बोलने नहीं पड़ेगा, अरे प्रभु जी आए सब लोग उठो, बोलते हैं ना, कोई जो उठता है तो उसको बोलना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो चलो यार पानी नहीं है, चलो आज बहुत अच्छा है पानी नहीं है, पानी नहीं तो खुश हो जाएंगे हम लोग। जैसे हॉस्टल में, हम लोग पहले हॉस्टल में थे, तो जैसे ही लाइट चला जाता था ना,
लोग चिल्लाते थे और चीखते थे, बहुत खुश हो जाता था क्योंकि अभी पढ़ाई करने का टेंशन है नहीं लाइट नहीं तो पढ़ाई भी नहीं होगा। उसी तरह अगर बेस में आने के बाद लाइट नहीं है या पानी नहीं है, अगर कोई खुश हो रहा है चलो 8 बजे सोऊंगा 6 बजे उठूंगा, तो मतलब गड़बड़ है। ये नहीं तो हरि के प्रति भक्ति नहीं, भक्ति कुछ समय स्टार्टिंग में विधि भक्ति रहता है, रूल्स रेगुलेशन लगाना पड़ता है, पीछे लगना पड़ता है, उठो साधना कार्ड भरो और फिर फाइन दे दो, पर बाद में स्वाभाविक होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। अगर हरिनाम में अगर मैं मंगल आरती आज नहीं किया, सुबह में उठ के जब नहीं किया, तो दुख होना चाहिए कि जीवन में आज का दिन वेस्ट गया मेरा, कुछ किया ही नहीं, एक क्षण मेरा वेस्ट गया, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम वेस्ट गया, इसको लगना चाहिए। और फिर वो जाके सोचेगा क्यों ऐसा हुआ, रात में मैं लेट क्यों सोया, रात में ज़्यादा खाया था, फिर उसके ऊपर वो काम करेगा भौतिक चीज़ों पे। जहाँ पे गड़बड़ हुआ साधना के लिए, वो है सीरियस डिवोटी, वो है गंभीर डिवोटी। अगर चल रहा हो, एक दिन नहीं उठा तो क्या फर्क पड़ता है, 6 दिन तो मैं उठ ही रहा हूँ। अगर किसी की भावना है तो गलत भावना है। तो हरि के प्रति, भगवत मॉर्निंग प्रोग्राम के प्रति, हरिनाम के प्रति रुचि बढ़नी चाहिए, और माला जप करने की इच्छा होनी चाहिए, और वैष्णव सेवा करने की इच्छा होना चाहिए। फिर वह मतलब सही प्रकार से श्रवण हो रहा है। और 5वां चीज था तत्पुरुषम च सख्यम, भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ मित्रता स्थापित हो जाती है। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसके बिना अगर ये नहीं हो रहा है, हो सकता है बाकी सब चीजें हो जाएगा, पर भक्ति का संबंध नहीं हो रहा है तो थोड़ा गड़बड़ है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, क्योंकि भक्तों के साथ संबंध में ना, क्योंकि बाकी सब चीजों पे आपका मन का तपस्या है, बुद्धि का तपस्या है, शरीर का तपस्या है, पर अल्टीमेट तपस्या किसका रहता है? ईगो का रहता है, ईगो का, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म है, ईगो वाला तपस्या। कल कोई हम लोग सब कुछ अच्छा चला, आपका हरिनाम अच्छा हो गया, 16 क्या 32 माला हो गया एकादशी के दिन, सॉरी 2 घंटा भागवतम भी सुन लिया और आके यहाँ पे पूजा भी कर लिया, हरिनाम भी हो गया, और शतगुण तो चल ही रहा है, पर किसी भक्ति के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है और कोई आके भक्त बोलता है आपको सेवा भी करने से ठीक से करने को नहीं होता, तो तुरंत ईगो हर्ट हो जाता है। और उसके बाद माला जब होगा, उसके बाद माला में ध्यान लगेगा, उसके बाद भगवान का पूजा करने की इच्छा हो जाएगी, तो तुरंत ऐसे लगता मैं घर जाता हूँ, ऐसा लगता है मंदिर जाऊंगा। थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो हम लोग थोड़ा भक्तों से दूर होना चाहते हैं। तो ये सबसे सीरियस चीज यहाँ पे, अगर भक्ति करने के बाद अगर हम लोग अपने ईगो को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो सबसे सूक्ष्म स्तर पे साधु लोग में या फिर भक्तों के संग में रहने सबसे बड़ी यही तपस्या है कि अपना ईगो को मैनेज करना। तो ये होना चाहिए हरि कथा सुनने के बाद, भगवान की लीला सुनने के बाद या फेस्टिवल होने के बाद। अगर ये लगता है कि ये मैं सबके साथ सेवा कर सकता हूँ, तो ये भक्ति के साथ सेवा नहीं करूँगा, तो गड़बड़ है। और भगवान बार बार मायादेवी बार बार वो भक्त या उसके जैसा दूसरा भक्त आपके जीवन में लाते रहेंगे, कि जब तक ये परीक्षा हम लोग पास नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि जैसे इंजीनियरिंग में रहता है ना, जब तक वो सब्जेक्ट क्लियर करेंगे, थोड़ा एटीकेटी लगेगा, एटीकेटी लगा के आप अगले इसमें जाएंगे, और उससे भी आगे जाना है, वो सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, किसी भक्त के साथ संबंध ठीक नहीं होना, जब तक इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, तो बाकी सब चीज़ें एक तरह से फेल हो जाती है या बहुत कम पड़ जाते हैं हम लोग वहाँ पे, और रुचि नहीं आएगा। क्योंकि हमको पता नहीं कि ये जो चीज़ है ना, भक्तों के संग में रहना, भक्तों के संग में आके सहकार्य की भावना में सेवा करना, इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाते हैं गुरु महाराज प्रभुपाद और भगवान भी। कहाँ पे इसका उल्लेख आ जाता है, हाथों पर कीजिए। वो 2 भाई थे राजा, और उनके स्निग्ध संबंध के वजह से भगवान खुश हो गए। भागवतम में है 2 राजा नहीं थे, मतलब थोड़ा 50% भाई थे वो। हाँ, भागवतम में प्रचेतास का कथा आ जाता है, वहाँ पे
प्रचेता की कथा में भगवान बोलते हैं कि प्रचेता हजारों की संख्या में या 100 प्रचेता है, 100 थे। तो वो साथ में तपस्या करते थे, साथ में भक्ति करते थे। तो भगवान वहां पे बोलते हैं आपकी तपस्या से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, आप जो साथ में आके जो मेरा भक्ति कर रहे हैं ना, उससे मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, और ये मुझे बहुत आनंद देने वाला चीज है। वेरी गुड। और कहाँ पे आता है इसके बारे में? हाथ ऊपर कीजिए। प्रभुपाद क्या बोलते हैं इसके बारे में? नहीं, प्रभुपाद का फेमस सेंटेंस है प्रभु इसके बारे में। प्रभुपाद बोलते ये चीज मुझे संतुष्ट करेगा। हाँ, कॉपरेटिव चादर, एक दूसरे के साथ सहकार्य की भावना रखो। लेकिन इस्कॉन जो है ना, वो बाहर से कितना भी बड़ा समस्या आ जाए, गवर्नमेंट अनफेयर हो जाए, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी बड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो इस्कॉन रुकने वाला नहीं। इस्कॉन को बाहर से समस्या नहीं, समस्या अगर अंदर से, अगर अंदर के भक्त एक दूसरे के साथ संबंध अच्छा नहीं, एक दूसरे का ईगो हर्ट हो रहा है या ईगो लेवल पे काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे हो जाता है। उदाहरण क्या है? हाथ ऊपर कीजिए। एक कम्युनिटी था, एक संस्था था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने बोला था कि आप साथ में आके रहो, प्रचार करो। उन्होंने बोला था कि जीबीसी फॉर्म करो, तो उन्होंने किया है। तो जो इतना बड़ा फ्लरिशिंग मोमेंट था, इतने बड़े आचार्य होने के बाद भी, भगवान के शुद्ध भक्त के शिष्य होने के बाद भी, सन्यासी होने के बाद भी, ब्रह्मचारी होने के बाद भी पूरा मिशन कोलैप्स हो गया। बस क्या चाहिए था, क्या इच्छा थी कि who will be the next आचार्य, वो एक था। दूसरा था कि गंगा के किनारे उन्होंने बहुत बड़ा वो पैलेस बांधा था, तो वहां पे किसका रूम होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें थी। देखो कहाँ पे एक पूरी दुनिया का त्याग करके चले आ गए, आज ब्रह्मचारी भी बन गए, सन्यासी भी बन गए, दूसरों को कृष्ण भावना का प्रचार भी कर रहे हैं, पर वही लोग भी अटैच है छोटी चीजें से, छोटी मोटी फैसिलिटी से। कितना भयानक ये चीज है। भौतिक आसक्ति, भक्त के साथ संबंध नहीं, ठीक से नहीं होना, हमारे गुरु का, आचार्य का मूड नहीं समझना, और ये सब होने के बाद अपने ईगो को मैनेज नहीं कर पाना, ईगो को अपना पीछे हटना, ये नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो आसक्ति के ऊपर मैं बोलूंगा, महाभारत में कथा आ जाती है, शायद सुंद उपसुंद दोनों राक्षस थे। वो राक्षस इतना भयानक थे कि सब उनसे डरते थे, देवी देवता भी डरते थे। तो होता ऐसा है कि इसमें वो दोनों तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं, और कोई भी असुर जब भगवान को प्रसन्न करता है तो क्या वरदान मांगेगा? अमर कर दो। तो भगवान का डायलॉग फिक्स, ब्रह्मा जी का डायलॉग फिक्स था कि मैं खुद अमर नहीं, आपको क्या अमर करूंगा, तो अमर नहीं, आप दूसरा कुछ कमाओ। तो फिर हमको बताया कि हिरण्यकशिपु ने अपना बुद्धि दिमाग लगाया, तो उन्होंने ओके, तो उसी तरह दोनों ने दिमाग लगाया। तो उनको पता था कि हमको कोई असुर नहीं मार सकता, कोई राक्षस नहीं मार सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, बोले कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम दोनों जब आपस में युद्ध करेंगे और हमारा अगर मृत्यु होगा ना, हम दोनों का आपस में होना चाहिए, मतलब मैं उनको मारूंगा, ये उनको मारूंगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि उनका इतना श्रद्धा था, कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, और बचपन से, मतलब हम बोलते हैं ना लंगोटी यार जैसे, वैसे एकदम क्लोज फ्रेंड थे, मतलब क्लोज भाई थे दोनों से। और जो भी खाते थे साथ में खाते थे, साथ में सोते थे, किधर जाना है तो साथ में ही जाते थे। मतलब उनका पूरा विश्वास था कि हम लोग एक दूसरे को कभी युद्ध करेंगे नहीं और मारेंगे भी नहीं। तो ब्रह्मा जी बोलते कि ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये वरदान दे देता हूँ मैं आपको। तो फिर जैसे ही वरदान मिलते हैं, देवता के ऊपर आक्रमण हो जाता है, और सब चीजें, मतलब पूरा सक्सेस उनको मिल जाता है। पृथ्वी के ऊपर उनका ही राजा, स्वर्ग के ऊपर राजा, और इसके कारण सब परेशान थे इन दोनों के कारण। तो फिर देवी देवता स्वाभाविक ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और उनसे याचना करते हैं कि कुछ तो करो, इन दोनों का भी बहुत हो गए, कितना दिन दुख भोगेंगे, कितना दिन उनको सहन करेंगे।
तो फिर ब्रह्मा जी वहां पे अपने शक्ति से एक अप्सरा को प्रकट करते हैं। पता है किसको इसका नाम? उसका नाम था तिलोत्तमा। तिलोत्तमा मतलब तिल रहता ना, तिल इतना छोटा रहता, तो उसके शरीर का हर एक पार्ट तिल तिल से अगर हिसाब करेंगे ना, हर एक पार्ट बहुत सुंदर था, इतना सुंदर देखने के लिए। तो इसके लिए मतलब उसका नाम तिलोत्तमा हुआ था, द बेस्ट ऑफ ऑल अप्सरास। ब्रह्मा जी ने इसको किया था, और वो सही में उतना सुंदर थी, क्योंकि अभी जब ब्रह्मा जी ने उसको निर्माण किया ना, तो वहाँ पे शिव जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, और नारद मुनि भी थे, सब देवी देवता थे, ऋषि मुनि भी थे वहाँ पे थे। तो उसको बनाने के बाद उसको उसका कार्य सौंपा जाता है कि आप जाके इन दोनों जो असुर है, आपको एक काम करना है कि उन दोनों के बीच में जाके युद्ध होना चाहिए, तब जाके उनका मृत्यु हो जाएगा। तो तिलोत्तमा तो ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और फिर वो प्रदक्षिणा ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता हो गए, तो उनको प्रदक्षिणा करने चालू कर देती। तो वो इतना सुंदर थी, तो पहले तो वो किसी ने सबको डर था, जब वैरागी देवी दाता सब अपना फोकस थे, देखना नहीं देखना नहीं देखना नहीं, सब ऐसा सोच रहे थे कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बनाया सबसे बेस्ट चीज अगर बनाया तो वही था। तो सबको डर था कि हमारा मन मोहित ना हो जाए, माया के जंगल में हम फंस ना जाए, तो कोई भी देखने के लिए रेडी नहीं था। पर जैसे वो चलने लगती तो उसके पैरों का जो पंजन था, छिन छिन छिन, भाव में उसके जो कंगन थे वो टिंकलिंग होने लगे। तो जब तक शांत था तो कुछ नहीं, पर जैसे शब्द ध्वनि उन्होंने सुना, जैसे वो ध्वनि उनके कानों में गिरने लगा, तो सबके मन में वो इच्छा जागृत हो गई। तो वहां पे शिव जी थे, तो जैसे ही वो प्रदर्शना कर रही थी, तो जैसे ही लेफ्ट में गए ना, शिव जी का वहां से मुंह आ गया, तो शिव जी वहां पे देखने, जैसे पीछे गए तो शिव जी वहां पे देखने लगे, फिर दूसरी दिशा में गए वहां पे देखने लगे, तो शिव जी के 5 सर वहां पे आ गए, बस वो तिलोत्तमा को देखने के लिए। और इंद्र के जो शरीर था, उसके शरीर के वजह हजारों आंखें वो खुल गई और तिलोत्तमा को देखने के लिए, और सब देवी देवता बस केवल उसको ही देख रहे थे, इतना सब भ्रमित हो गए, वो कंट्रोल कर रहे थे। वो जो आने के बाद मैंने उसको पढ़ा, जो बहुत अच्छा से लिखा है, टॉर्टोइज का रूपक भगवद गीता में देते हैं। क्योंकि टॉर्टोइज क्या करता है, अपने सेंसेस कंट्रोल करके रखता है, वो अंदर लेके रखता है। उसी तरह एक शुद्ध भक्त है ना, वो केवल अपने इंद्रियों को दमन कर सकता है, उसको कंट्रोल कर पाता है, पर बद्धजीव नहीं कर सकता, उसके सेंसेस हमेशा भागते रहते इधर उधर। तो वैसे देव देवताओं का हालत हो गया, सब वो कर रहे थे, देख रहे थे। तो बाद में सबको अपना शर्म आ जाता है, और उसको भूल के फिर से चले जाते हैं, और फिर तिलोत्तमा आ जाती है, ये 2 असुर यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही वो, ऐसा नहीं था कि उनके पास अप्सरा का कमी नहीं था, सुंदर स्त्रियां बहुत सारे थे उनके पास, बहुत सारे ऐश्वर्य भी कर रहे थे। मतलब इंद्र तृप्ति की भावना ऐसी है, उसमें जो कभी संतुष्ट हो गए, अग्नि में कितना भी घी डालेंगे अग्नि भड़कते ही जाता है, तो वैसा उनका था। कितना भी इंद्र तृप्ति होने के बाद, जैसे हमने देखा कि तृष्णा ऐसी चीज है, वो कभी संतुष्ट होने वाली है नहीं। सोचो हमने बेस में कितनी बार फिस्ट बनाए, जैसे लास्ट टाइम क्या बना था, इडली बनाया था। तो अगर प्रभु जी हम लोग 20 इडली खाते हैं, तो ऐसा होगा क्या कि अभी अगर इडली बनाए या डोसा बनाए, प्रभु जी बोलेंगे तृप्त हो गया मेरा मन, और खाने की इच्छा होगी। संकल्प को समझो, क्या अच्छा लगता है संकल्प को? रबड़ी अच्छा लगता है, हाँ। और क्या सिंपली अच्छा लगता है। तो प्रभु जी अभी भी इच्छा करेंगे, प्रभु जी खाली हाथ आए सिंपली लेके आ गए। तो कितना भी हम लोग खाएंगे, बहुत जीवा के लिए, आंखों के लिए और खानों के लिए, कभी तृप्त होने वाले नहीं हमारी इच्छा। और ऐसे नहीं इस जन्म का मैं बात कर रहा हूँ, अनंत काल से हमने ये भोगा है, फिर भी मन की इच्छा तृप्त नहीं हुई। तो संत उपसंत थे, उनका भी ऐसा था, हर एक इंद्र तृप्ति उनके पास था, फिर भी जैसी तिलोत्तमा के देखते उसकी तरफ उनका मन मोहित हो जाता है, और दोनों भागने लगते हैं। तो जो बड़ा वाला बोलते, सुंदर बोलते कि अहम पुरम, मतलब मैं पहले बोलता है कि ये श्लोक भूल गया हो, अपने छोटे भाई से बोलते हैं, ये आपकी भाभी है, मेरी पत्नी है,
मेरी पत्नी आपकी भाभी, और छोटा भाई बोलते कि नहीं 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 मेरी पत्नी आपकी भाभी, ऐसा हो जाता। तो इनका झगड़ा इतना हो जाता है, दोनों आपस में युद्ध करने लगते हैं बस एक स्त्री के लिए। और झगड़ा यहाँ तक जाता है कि दोनों एक दूसरे का वध वहां पे कर लेते हैं, जो जिन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ये है मटेरियल हैंकरिंग, इतना भयानक है भौतिक इच्छा। हम लोग एक एनालॉजी देते हैं ना, हमारी पांचों इंद्रियां बहुत स्ट्रांग है, पर कुछ कुछ ऐसे प्राणी हैं वहां पे उनका बस एक ही इंद्रिय वहां पे स्ट्रांग है, और उनका जीवन का अंत हो जाता है उसका तृप्ति करने के लिए। तो आप लोगों को मुझे बताना है, काम के कारण किसका मृत्यु हो जाता है? हाथ ऊपर कीजिए। आपने बताया। हाँ, हिरन का हो, तो शिकारी को अगर हिरन को पकड़ना है तो बांसुरी बजाता है। प्रभु जी हमारे यहाँ पे बांसुरी बजाता है, पर बस कृष्ण के लिए बजाओ, शिकार मत करो। तो वो बांसुरी का आवाज इतना मधुर रहता है, तो उसको सुनने के लिए वो हरिन एक जगह पे स्तब्ध हो जाता है, और शिकारी आके बहुत आराम से उसको, जो हरिन शेर के भी पकड़ में नहीं आता, इतना वो तेज भागता है, पर वो हरिन शिकारी के पकड़ में आ जाता है। आग के लिए किसका बलि चढ़ जाता है? हाथ ऊपर कीजिए। मधुमक्खी नहीं है। आदित्य प्रभु, कौन है जो देखने के कारण अपना जीवन समाप्त हो जाता है? हाँ, पतंग उसको बोलते हैं। आग में, वो आग का उसको इतना अट्रैक्शन रहता है, उसको पास में जाता है ना, थोड़ा आगे आग का स्पर्श भी हो जाता है, उसका दाह भी आता है, फिर भी भोग की इच्छा इतना प्रबल है, वो पता होने के बाद में आग में कूद जाता है। क्योंकि इंद्र तत्व इतना भयानक है, जैसे पांडु महाराज को पता था मेरा अंत होगा अगर मैं माद्री के साथ संग करूँ, भोग लेने की इच्छा इतना प्रबल रहती है, पता होने के बाद भी उसका संग करते उनका मृत्यु हो जाता है। उसी तरह पतंग अपना शरीर उस अग्नि में झोंकता है और उसका मृत्यु हो जाता है। और नाक के कारण किसका मृत्यु हो जाता है? भृंगा। जो भृंगा हो पूरा दीवार में लकड़ी में भेद कर सकता है, और वो भृंगा कमल के अंदर चला जाता है, और कमल का सुगंध लेने में इतना वो मस्त हो जाता है, जब कब कमल बंद हो जाता है और उसका मृत्यु होता है तो उसको पता नहीं जाता। और वो पंखुड़े को भेज सकता है, वो कितना सॉफ्ट रहती है, उसको भेज के बाहर आ सकता है, और वो एंजॉयमेंट के लिए उसका मृत्यु वहां पे हो जाता है। क्या हो? आँख हो गया, कान हो गया, नाक भी हो गया। जीवा के लिए कौन है? फिश जो है, अभी उस फिश का पूरा समंदर पड़ा है खाने के लिए, कुछ कम है क्या उसके बाद? फिर भी जो मछुआरा है वो हुक को लेके कुछ खाने के लिए देता है, वहां पे उसका जीवन अंत हो जाता है। और स्पर्श सुख के लिए हाथी है, कितना बलवान प्राणी, शेर को भी पराजित कर सकता है, सिंह को भी बड़ा बड़ा लोड वो उठाता है। और वही हाथी जब हाथीने के पीछे भागता है, केवल स्पर्श सुख उसको चाहिए, तो गड्ढे में वो गिर जाता है और उसको शिकार आके पकड़ लेता है। तो इतना बस एक इंद्रिय जो बहुत प्रबल है, और सब लोग इसमें फंस रहे हैं, इतने बड़े एक्सपर्ट लोग। पर हमारा देखो, हमारी पांचों इंद्रिया भयानक है। कितना खाया है पिता, कितना गुलाब जामुन, अगर कैलकुलेशन भी किया कम से कम बकेट भर गुलाब जामुन पूरे जीवन में खाया, कितना रबड़ी पिया रहेगा प्रभु जी ने, फिर भी वो हम लोग संतुष्ट हैं। सबका वैसा है, कितना इडली खाया रहेगा हम सब ने, फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो ये है जीवन का। आंखों का कभी हुई, कितने सारे सुंदर चीजें हमने देखे, फिर भी मंदिर में आने के बाद आंखें भागते इधर उधर, कुछ अच्छा देखने की इच्छा होती है। कॉलेज में जाने के बाद देखते कि अरे इसके जैसा कोई है ही नहीं, फिर वो गाना याद आता है, फिर चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, पुराना गाना था वो। फिर देखते हैं, और कुछ नहीं, ये सब चीजें ऐसा ही भयानक है कि आंखों का संतुष्टि वहां पे है नहीं, कानों का संतुष्टि वहां पे थोड़ा छिन, जैसे देवी थोड़ा छिन छिन सुना तो सबके कान खड़े हो गए, वही कान कथा में सुनने के बाद सो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कब एंड होगा।
जीवा हो गया, कान हो गए, नाक हो गए। तो ऐसे मनुष्य हम लोग इन पांचों इंद्रिय हमारे स्ट्रांग है, और स्पेसिफिकली यूथ में रजोगुण तो भरा हुआ रहता है, और इसमें हम लोग कुछ करके दिखाना है, कुछ दिखाना है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा इतनी स्ट्रांग रहती है। तो ऋषि सिंह भी यहाँ पे फेल हो गया। कोई ऐसा राजा हो गया नहीं, साधु संतों ने यहाँ पे फेल नहीं हुए। बड़े बड़े लोग, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, ऋषि सिंह, बड़े बड़े विश्वामित्र मुनि, सौभर्य मुनि इसमें फंसे हुए, और हम लोग हैं कलयुग के जो, तो हमारा क्या हो सकता है? इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए। अजामिल के केस में एक ही गड़बड़ था, उसको भक्तों का संग में नहीं था। अगर वो, क्योंकि अजामिल देख के आता है और उसके आने के बाद उसका चिंतन चालू हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वो चीज देखने के बाद उसका स्मरण उसको चालू हो जाता है। अगर भक्तों के संग में रहता, उसको उससे तक वो बता सकता था, अपना हार्ट शेयर कर सकता था, या भक्त उसको देख के वो पूछ सकते थे क्या हुआ, आप इतना विचलित क्यों हो, सेवा में आपका मन नहीं लग रहा है, जप में आपका मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, ये बोल सकते थे। पर भक्तों का संग उसको था ही नहीं, इसके कारण आज मैं वहां पे फंस गया। तो हम लोग भी वहीं पे फंसते हैं, हम लोग फंसते हैं भक्तों के संग नहीं लेने के कारण। तो अब लोग प्रभु जी हम तो संग में है ही, पर इसमें भी सेकंड पार्ट क्या रहता है, शरीर में भक्तों के साथ रहते हैं पर अंदर गड़बड़ करते हैं। शरीर यहाँ पे है, मन कहीं और पे रहता है, या कभी भी मोबाइल जो है, मोबाइल में बात करना, अगर कोई लेट बात कर रहा है मोबाइल के ऊपर तो समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ है, या अपना लैपटॉप घुमा के कुछ तो देख रहा है तो गड़बड़ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग चीजें फंस जाते हैं। फिर आपका मोबाइल और लैपटॉप जो सबसे बड़ा असत्संग, आप लोग है भक्तों के संग में, पर सबसे बड़ा असत्संग आपका मोबाइल। आप भक्तों का संग कम ले लेते हैं पर मोबाइल का संग ज्यादा लेते हैं। तो एक तरह से हमको लगता है अरे हम लोग भी कीर्तन कर रहा हूँ, डांसिंग कर रहा हूँ, हरि नाम भी ले रहा हूँ, मॉर्निंग प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, पर एक समय जब आ जाता है रजोगुण का, तमोगुण का, वो बेड में घुसने के बाद या फिर लेट नाइट जब सब भक्त सो जाता है, करते तो पढ़ा ही है, पर अचानक से मन में इच्छा आ जाती है थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, थोड़ा न्यूज में देखूंगा, मेरा फेवरेट सीरियल कुछ तो रहेगा, शिवाजी महाराज का रहेगा या फिर और कुछ रहे मूवी रहेगा, तो वहां पे मैं जाऊंगा। तो वहां पे हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, अगर शुरुआत वहां हुआ, स्टॉप हुआ तो कुछ गड़बड़ नहीं, पर मन इतना भयानक तृप्त होगा ही नहीं, तो पहले चालू होगा कुछ तो अच्छे पायस चीज से, भक्ति के अंग से ही चालू होगा। पर प्रभु जी सोचो वहां पे तमोगुण का प्रभाव है, रात वाला जो चीज है ना, रात में हियरिंग केवल सुखदेव गोस्वामी ने किया रहेगा 7 दिन 7 हमारे लिए है नहीं। हमारा काम है जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठकर नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना। रात में कथा सुनना है नहीं हमारे, इसलिए जितना हो सके रात में 9 बजे 10 बजे सोना चाहिए। 10 बजे के बाद आप जहाँ रहना समझो तमोगुण हावी हो रहा है, तो शुरुआत होगा कृष्ण में और फंस जाएंगे माया में, ये होगा हमारे लिए। तो ये ध्यान में रखो, कभी भी लेट नाइट करो मत, जल्दी उठो, ये आदत डालो शरीर को, तब हम लोग बचेंगे। नहीं तो सुंदर उपनंद, हमारे लिए सुंदर उपनंद क्या है पता है क्या है? एक है हमारा मन और दूसरा है हमारा बुद्धि। तो हमारा झगड़ा चालू रहेगा हमेशा, मन भागेगा, ये करना है वो करना है, बुद्धि बोलेगा मत करो मत करो। और उस मन को अगर असत्संग मिल गया मोबाइल का, तो बुद्धि को तो भूल ही जाओ, तो सो ही जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, बुद्धि कुछ नहीं कर पाएगी, वहां पे काम ही करेंगे नहीं। वो बहुत आज में कुछ लोग याद आ जाते हैं, वो वेद का श्लोक बोल रहा है, सब कुछ बुद्धि का अपना वो कर रहा था, पर मन इतना भयानक हो गया वो कर नहीं गया। तो ऐसे मन को चाहिए रूल्स रेगुलेशन और दूसरा भक्तों का संग। तो रूल्स रेगुलेशन हमको बचाएंगे, डर है ना, रूल्स रेगुलेशन हमको डर रहता है। जैसे यही अगर आप लोग बाहर में रहे, कोई पूछने वाला है नहीं, उठा नहीं उठा, जब हुआ नहीं हुआ, उठा क्लास में बैठा है नहीं उठा है, कोई पूछेगा नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन हमको बचाएंगे। इसलिए इंस्टीट्यूट जो है हमको यहाँ पे हेल्प कर देता है, बेस हमको यहाँ पे हेल्प करता है। हमारा इंडिपेंडेंट माइंडेडनेस जो है उससे हम लोग बच जाते हैं, इसलिए बेस में रहना चाहिए। बाहर जाने के बाद देखो, अभी जो भी व्यक्ति गृहस्थ बन जाता है तो वहां पे पूछने के लिए कोई है नहीं,
और इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना, मतलब पांचों इंद्रिय संतुष्ट करने के लिए सब कुछ है उनके पास। अगर ऐसा गृहस्थ, अगर इसके जीवन में कोई अथॉरिटी है नहीं, कोई काउंसलर है नहीं, जिसको रेगुलर रिपोर्टिंग उसका है, कोई पूछने वाला है नहीं, तो फिर फंस जाता है। फिर बस माया ऐसी पीट लेती है, पूछो मत। तो इसलिए जीवन में रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। सुबह जल्दी उठने का, रात में जल्दी सोने का, मोबाइल के लिए खुद हो के अगर रूल्स रेगुलेशन डालेंगे, जैसे प्रीतम ब्रो का बहुत अच्छा है अपने मोबाइल के लिए उन्होंने, क्योंकि हमको पता है हमारा मन कितना भयानक है, तो मोबाइल में उनका व्हाट्सएप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए चलता है। उसके बाद हो गया, यूट्यूब भी चलाएंगे, व्हाट्सएप भी चलाएंगे ना, मोबाइल अपने आप बंद हो जाता है। तो ये सीरियसनेस हमको खुद होके भक्ति में हमको पता होना चाहिए वीक पॉइंट क्या है, और उसके लिए हमको वो करना चाहिए। इसलिए पेरेंटिंग कंट्रोल प्रभु जी वो हम लोग पेंडिंग है, उसको जितना जल्दी से होके हमको करना चाहिए। तो खुद होके ये सब चीजें करो, पेरेंटिंग कंट्रोल होना चाहिए कंप्लीट, कि हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। दूसरा है अथॉरिटी। अथॉरिटी के साथ या वरिष्ठ वैष्णव के साथ, सीनियर ड्यूटी के साथ ऐसा संबंध होना चाहिए, हम लोग कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं वो जाके पूछना चाहिए। अगर सुपरफिशियल साथ में रह रहे हैं, तो हमारा मन हम लोग प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वहां पे फंस गए। अजय की जीवन में कोई था नहीं प्रकट करने के लिए, वो उतना बोल भी देता कि मेरे मन में इतना गलत विचार आ रहे हैं, मैं फंस रहा हूँ, तो मुझे मदद कर, तभी उसका हो जाता। कम से कम हमको ये करना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है, गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं, गलत इच्छाएं आ रही, हम लोग भक्ति मार्ग से भटक रहे हैं, तो कोई तो सीनियर ड्यूटीज होने चाहिए या फिर अथॉरिटी होना चाहिए। इक्वल लेवल पे ये सब सोल्यूशन नहीं होगा। जो भक्ति में स्टेबल है, ऐसा नहीं कि ये भी सो रहा है मैं भी सो रहा हूँ, उसके जब के साथ आप हार्ट शेयर करेंगे तो बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरा भी वही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। आपसे सीनियर होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, उसके साथ जाके हार्ट रिवील करना चाहिए और सोल्यूशन लेना चाहिए, तब जाके बचेंगे हम लोग, नहीं तो फिर बचे। अभी हम लोग सेफ है भक्तों के संग में, तो इसका परीक्षा होगा, आज न कल तो 100% होगा, जहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा। इसलिए ना खुद होके इंडिपेंडेंस नहीं लेना चाहिए, खुद होके अलग नहीं रहना चाहिए। आप घर में जाते थे कहाँ पे फंसते हैं, यही पे फंसते कि आपको इंडिपेंडेंस है, कोई पूछने वाला है नहीं। वहाँ बोलेगी क्यों उठ रहा है बच्चा, सो जा, इतना जल्दी उठना थोड़ी, कितना मेहनत तो करता है, खाने को बहुत मिलेगा, आराम से जीवन रहेगा, कोई पूछेगा नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंस हमको मिल रहा है, तो ये जीवन बहुत भयानक है, इंडिपेंडेंट जीवन। इसलिए गुरु के आश्रम में हमेशा शिष्य रहता था, उसको कुछ इंडिपेंडेंट था ही नहीं। खाना भी है तो उसको पूछना पड़ता अभी खाओ या नहीं, इतना रहता था। इतना तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, जितना खाना है खाओ, मौज मस्ती करना है करो। तो छोटी छोटी चीजें जो हैं, जहाँ पे आप लोग फर्स्ट है वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। कोई इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। घूमने के बारे में, यात्रा करने, श्रवण करने के बारे में कुछ भी मत सुनो, जो जरूरी उतना ही सुनो, जो पढ़ना जरूरी उतना ही पढ़ो। इसलिए भक्ति मार्ग में ना छोटी छोटी चीजें पूछना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, किसके संग में रहना है, यहाँ तक भी ये पूछना चाहिए। तो यहाँ से ये आदत भी डाल देते ना, तो इंडिपेंडेंस नेचर चला जाता है और बहुत बहुत सेफ है, उस भक्त के लिए बहुत सेफ है। नहीं तो आगे जाके तो आप लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएंगे या गृहस्थ आश्रम में जाएंगे वो मैटर नहीं करेगा, पर आगे जाके सीनियर हो जाते हैं ना तो इंडिपेंडेंस आ जाता है। और वहां पे अगर फंस गए तो गड़बड़ हो गया। तो हमारे जीवन में कोई ना कोई तो एक अथॉरिटी होना चाहिए, जिसको हर एक चीज पूछ के हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज अगर करेंगे तो क्योंकि फेस्टिवल होते रहेंगे, यात्रा होते रहेंगे, पर कुछ हमको अपने ऊपर भी काम करना रहता है। फेस्टिवल में कृपा प्राप्त करना बहुत आसान है, कि कम से कम जाके वहां पे ये प्रार्थना तो करना चाहिए कि मेरा एक वीक पॉइंट है, अभी भी काम है, क्रोध है, डिप्लिसिटी है, मन नहीं लगता, तो भगवान को प्रार्थना होना चाहिए, इससे मुझे बाहर निकलने के लिए आप हेल्प करो। तो इसके लिए सुनना चाहिए भगवान के बारे में, क्योंकि किसी व्यक्ति हम लोग प्रार्थना कब करेंगे, उस व्यक्ति की महानता सुनाएंगे, उनके कृपा का भाव सुनेंगे, उन्होंने जो करुणा किए बद्ध को, जब वो सुनेंगे ना तभी जाके हमको वो प्रार्थना का भाव आ जाएगा। क्योंकि हम लोग भी उसी अवस्था में, हम लोग भी परेशान है, तो इसलिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए। इसलिए नित्यानंद त्रयोदशी हो, वृंदावन यात्रा हो, गौर पूर्णिमा हो, राधा गोविंद जी का बर्थडे ना, तो पहले हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए।
सुनने से या पढ़ने से, तब वो फेस्टिवल आपका सक्सेस हो जाएगा। नहीं तो प्रसाद हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा, डेकोरेशन सब कुछ हो जाएगा, पर हृदय में कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं, माला बढ़ाने की इच्छा होगी ही नहीं। कंठी माला पहनना एक्सटर्नल आ जाता है, क्योंकि लोग पूछते हैं यहाँ पे अभी तो कंठी माला है, तो दिखावा वाला चीज आ जाता है। पर आप कोई ये नहीं पूछेगा कि वे माला बढ़ाओ क्या कि प्रभु जी मैं 8 माला करो, मुझे 16 माला करने की इच्छा हो रही, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयरली हो जाता है ऐसा। तो ये होना चाहिए फेस्टिवल में। गौर पूर्णिमा में गौरव महाप्रभु की कृपा क्या, आपको हरिनाम बढ़ाने की इच्छा हो गई, आपको संकीर्तन करने की इच्छा हो गई, ये है गौर पूर्णिमा। नहीं तो फिर एक कंपनी जैसा चालू है बस, और ऐसे ही चलेगा, वो रुकने वाला नहीं है, फेस्टिवल रुकने वाला नहीं है, प्रसाद रुकने वाला नहीं। तो इस चीज के ऊपर ध्यान दे दो और अच्छे से गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट करो। फिर लाइव देखो, और फिर ऐसी भावना आ जाती है ना, दूसरों के प्रति करुणा की भावना आ जाती है, सैक्रिफाइस की भावना आ जाती है, वो होना चाहिए फेस्टिवल का पर्पस। क्योंकि वही महाप्रभु का मोड़ है, वही प्रभुपाद का मोड़ है, वही आचार्यों का मोड़ है। जब तक हम लोग अपने बारे में सोच रहे, हम लोग वैष्णव है नहीं। हमको दूसरों को भक्ति मिलना चाहिए, इसके बारे में सोचना है। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। किसी का प्रश्न है कुछ इसके बारे में? Any doubt, any question? कुछ प्रभूजी ते जे देव लोक देवता होते त्या ते पॉज करू शकतो क्वेश्चन असे थोडा नाही हो जाए. तो आपण कसं इंद्रियाला कंट्रोल करायचं ते त्यांनी आवाज ऐकल्याबरोबर इंद्रिय कंट्रोल का उदाहरण आ जाता है, उनको टेम्पटेशन भी आ गया, फिर उन्होंने अपने आप को मैनेज किया। हाथ ऊपर कीजिए। यस, हरिदास ठाकुर। और नहीं कर पाए, बाद में उन्होंने किया, पर बाद में परीक्षा हुआ ही नहीं। पहले तो काम में फंस गए, बाद में क्रोध में फंस गए। अर्जुन का उदाहरण है। और अम्बरीश महाराज का भी क्रोध को उन्होंने कंट्रोल किया। और तुकाराम महाराज को उन्होंने किया। तो जितने भी उदाहरण है केवल वैष्णव के, ज्ञानी योगी कर्मी कभी नहीं करता, केवल वैष्णव बनने के बाद भी वो कर सकता है। तो वैष्णव बनना मतलब क्या, हमारे इंद्रिय को भगवान के सेवा में लगाना। हमको खाना है ना, बस प्रसाद खाना चाहिए, भले भूखे रहेंगे पर बाहर का नहीं खाएंगे, तब जीवा कंट्रोल हो जाएंगे। बोलना है तो केवल कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण के सेवा के बारे में बोलेंगे, हरि नाम बोलेंगे, तब वाचा कंट्रोल हो जाएंगे। देखना है तो कृष्ण का चेहरा देखेंगे, भक्तों का दर्शन करेंगे, गुरु का दर्शन करेंगे, ये इच्छा होनी चाहिए। और क्या है, सुनना है तो कृष्ण कथा सुनना है। तो जब इंद्रिय अपने हम लोग भगवान के सामने लगाते हैं, तब जाके हम लोग अपने इंद्रिय को कंट्रोल कर पाते हैं। आपको ग्रेजुअल प्रोसेस, इतना जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, पर होगा, इतना गारंटेड है। अपने कितना, मतलब मैं अभी कल यमुना माता जी का उदाहरण है, बुक्स पढ़ रहा था ना, तो फर्स्ट टाइम वो आई थी प्रभुपाद को मिलने की, उनकी सिस्टर की शादी थी, मतलब इसका उनका फर्स्ट मैरिज था, जानकी और मुकुंद शायद। तो वहां पे वो प्रभुपाद बोलते हैं जानकी को कि आपसे घर से कोई नहीं आ रहा क्या, जैसे हमारे यहाँ पे जाते हैं ना, बाराती जाते हैं शादी में, तो ऐसा कोई नहीं आ रहा क्या, तो कि आ रहे। तो देखते कि यमुना माता जी अकेले आए थे, बाकी कोई था नहीं घर में, पर उनको पता नहीं था स्वामी जी कृष्ण कौन, वो सब पता नहीं था। तो मैरिज के लिए बहुत बड़ा फीस्ट बनाना था। तो उसमें क्या होता है कि माता जी का एक कुछ तो शायद 17-18 ही रहेगा, ज्यादा भी नहीं था, 18 ऐसा कुछ तो था। तो प्रभुपाद कचौरी बना रहे थे तो फेस्टिवल के लिए, प्रभुपाद अकेले ही कुक थे, उनको हेल्पिंग हैंड चाहिए था। तो वो माता जी को बोलते हैं, यमुना माता जी को, तब उनका नाम क्या था? हाँ, जैन, तो जानकी का नाम था, ऐसा ही कुछ तो शायद था। तो बोलते कि ठीक है मैं मदद करूंगी, पर उनको वो सेवा भी कर रहे थे, तो बीच में उनको सिगरेट स्मोकिंग का आदत था, तो वो बीच में ब्रेक भी लेते थे, क्योंकि स्वामी जी मुझे सिगरेट वो करना है। तो प्रभुपाद का कंपैशन देखो, प्रभुपाद बोले ठीक है आप जाओ, सिगरेट स्मोकिंग करो, हाथ धो के फिर से आ जाओ।
तो ये कहा मतलब कितना लोअर टेस्ट था, सिगरेट स्मोकिंग बाकी सब चीजें। और बाद में ऐसे वक्त मतलब ये सब छोड़ के भगवान के लिए कुकिंग करने लगे, और बाद में इतना फेमस बन गई, उन्होंने बुक भी लिखा, भगवान के भोग अगर लगाना है तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन वो बनाते थे। तो एक है लोअर टेंडेंसी सिगरेट स्मोकिंग का, एक जीवा का इच्छा है, और वो एक दूसरा है भगवान का प्रसाद की इच्छा। तो जब हम लोग अपने हमारे जो आदतें हैं, हमारे जो सेंसेस है भगवान के सेवा में लगाएंगे, तब जाके हम लोग इंद्रियों को मैनेज कर सकते हैं। इतना जल्दी मुश्किल है, बहुत कठिन है उसको कंट्रोल करना, पर इजी प्रोसेस है, सेवा में लगाते रहो, जितनी सारी इंद्रियां सेवा में लगाते रहो, फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, और कुछ? फिर रुकते हैं हम लोग, मंगल आरती करेंगे और देखते हैं मंगल आरती करते करते भागवतम की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।